Hey guys, good morning. This is Nilesh here and I welcome you to this video. This video was requested by Mr. Prasad Bapat who does a weight loss program from all the way from Dubai. उन्होंने बहुत दिनों पहले ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था but somehow I was not able to do it. So today I've decided that I should be doing this video or this was the question asked by Prasad and I hope because of the question what was asked by Prasad and the answer in a form of video which I am going to give you, lot many people will benefit and that is why I thought कि only instead of answering only Mr. Prasad, let us do a video and so that everybody gets benefited. So Prasad sir का ये क्वेश्चन था कि उन्हें HIIT जो एक्सरसाइज है वो कितनी बार करना है, दिन में 2 बार या 3 बार किया तो क्या होगा, what results will it give it and number of other questions so he had. So what I have decided is that I'll do a video answering all these questions. So today's video will be about HIIT, then fat loss और प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन. जब आप इन तीनों चीज़ों का combination करते हो, that is the time you will get amazing results. So I am very sure you must be aware about what is HIIT. HIIT stands for high intensity interval training. उसमें क्या करते हैं हम, तो we do small exercises for a very small period of time. So just to give you an example, I'll do jumping jacks for maybe 20 seconds and then I will take a break of 10 seconds. Then I will do push-ups for 20 seconds and then I'll take a break for 10 seconds. Then I'll do burpees for 20 seconds and I'll take a break for 10 seconds. तो ऐसा क्यों करना है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके क्या रिजल्ट्स है, हम आज ये इस वीडियो में देखने वाले हैं. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, ये HIIT एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए इतना इफ़ेक्टिव क्यों है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. और एज वी ऑल नो, सिर्फ एक्सरसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ 80-20 रूल. 80% इज़ फूड डाइट न्यूट्रिशन एंड 20% इज़ एक्सरसाइज. सो अगर आप HIIT एक्सरसाइज भी करोगे और अगर आपका प्रोटीन ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा देन स्टिल इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट. सो तो दिस वीडियो इज टू हेल्प यू एक्सप्लेन एवरीथिंग. बाय द वे, आई एम वर्किंग फ्रॉम माय होम ऑफिस. दिस इज माय होम एज वेल एज माय ऑफिस. मैंने यहाँ पे एक पूरा बोर्ड लाया है जस्ट टू शो यू. आई हैव माय गोल्स रिटन ओवर हियर. I have my to-do list done over here. What am I targeting and number of other stuff. So this is my desk, come this is my home, come this is my office, come whatever you want to call it. So even I am doing this video on my shorts. I hope you are able to see it. That is the advantage of working from home. So लेट अस डीप डाइव इनटू दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना ज़रूरी है, हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हमें ताकत मिलती है. सो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म कैसे चलता है, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स. और ये एग्जांपल आज की तारीख में इतने शायद लागू नहीं रहेंगे बट स्टिल वी विल स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यू डोंट गो टू डोंट मतलब मैं अगर कुछ बोलूँगा तो अभी आप बोलो मत ऐसा कि नीलेश अभी तो ये ज़माना नहीं रहा. I know नहीं रहा, but just for our understanding. So to start the video now, let us take an example कि आपको मुझे कुछ पैसे देने हैं, so you owe me some money and where that money will you give me from. So अगर मैं आपको personally मिला हूँ and if that amount is not a big amount, in the case where UPI का ज़माना नहीं था, GPay का ज़माना नहीं था, फ़ोनपे का ज़माना नहीं था, भीम ऐप का ज़माना नहीं था, तब आपने मुझे पैसे कहाँ से दिए होते, तो आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव गिवन मी मनी फ्रॉम योर वॉलेट. सो यू ओव मी समथिंग एंड आपने आपका वॉलेट निकाला और वॉलेट में से मुझे पैसे दे दिए. जस्ट इमेजिन आपके वॉलेट में के पैसे ख़त्म हो गए हैं. So you still owe me money and the money which is there in the wallet is not sufficient so that you can fulfill my requirement. So what will be the next or the second source of money? So any guesses? Yes, I am very sure you have guessed it right कि अगर एक बार वॉलेट में के पैसे अगर ख़त्म हो गए होंगे तो we will go to our बैंक अकाउंट में. जो बैंक में हमने जो पैसे जमा करके एज अ सेविंग रखे होंगे. So the second source of money
is our bank account. But now just imagine still you owe me money और आपका मेरा रिक्वायरमेंट पैसे का फुलफिल नहीं हो रहा है. सो बैंक में के भी पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन मैं आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हूँ कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो. सो द मनी विच यू ओव मी इज़ नॉट देयर इन द बैंक, या बैंक में का भी पैसा ख़त्म हो गया है. तो आप क्या करोगे? और मैं तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ, ऐसा जस्ट इमेजिन. सो व्हाट विल यू डू? और नीलेश के पैसे तो बाबा देना यार, एक बार ये झंझट नीलेश की चली जाए. सो व्हाट will you do? So if you really owe me and if you are really serious that कि नीलेश की झंझट खत्म हो जाए, you will go to your third source of money which is called as fixed deposit. हमारे सबके पास देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट. किसके पास रिंग रहेगा, किसके पास चेन रहेगा, किसके पास शेयर्स में रहेंगे, किसके पास म्यूचुअल फंड्स में रहेंगे, फिक्स डिपॉजिट रहेंगे. सो दैट इज़ द मनी विच इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ मनी, जिसको हम डायरेक्टली हाथ नहीं लगाते. सो सबसे पहले पैसे को अगर चाहिए तो इट गोज़ टू माई वॉलेट. द सेकेंड आई गो टू माई बैंक, विड्रॉ द मनी. थर्ड, वो भी अगर कम गिरे, देन आई विल गो टू माई थर्ड थिंग विच इज़ माई फिक्स डिपॉजिट. एंड यू कैन कॉल फिक्स डिपॉजिट एज एनीथिंग, लाइक यू नो एज आई टोल्ड यू, गोल्ड हो सकता है, योर डायमंड्स ज्वेलरी कैन बी योर फिक्स डिपॉजिट, योर शेयर्स कैन बी योर फिक्स डिपॉजिट, योर म्यूचुअल फंड्स एंड नंबर ऑफ स्टफ. बट स्टिल यू ओव मी मनी, और वो रिक्वायरमेंट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. तो अब क्या करोगे? और मैं तो अभी हाथ धो के नहीं, मैं तो आपके पीछे अभी बंदूक लेके भी लगा हो. सो भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो. सो व्हाट विल यू डू? देन कम्स द फोर्थ सोर्स ऑफ मनी विच इज कॉल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने कुछ लैंड लेके खरीद के रखी होगी जस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. आपका फ्लैट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. मेरा ये घर इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी अगर आपने मुझे कुछ पैसे देने हैं, तो क्या आप आपका फ्लैट बेचने को जाओगे डायरेक्ट? नहीं जाओगे. एग्रीड? सो व्हाट विल यू डू कि भाई कितने पैसे देने हैं? हाँ 2000 तो देने हैं, तो चलो 2000 तो शायद वॉलेट में नहीं है, बैंक में से निकाल के देंगे. 5000 देने हैं, चलो भाई बैंक में से निकाल के देंगे. 50,000 देने हैं, शायद बैंक में नहीं रहेंगे, तो चलो भाई एक रिंग, यू नो, वी विल ब्रेक दैट रिंग एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ एंड गिव इट टू नीलेश. फिर भी अगर आपको मुझे 50 लाख रुपए अगर देने हैं, तभी जाके आप आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का या विड्रॉ करने का सोचोगे. सो दिस इज द हायरार्की. नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. नाउ अभी इसका हम कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे हमारे बॉडी पार्ट्स से. ओके, सो वेन एवर आई ईट फूड, माई ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक्स अप. मुझे जो एनर्जी मिलती है, इसका मतलब मुझे ग्लूकोज मिलता है. नाउ वेयर इज दिस ग्लूकोज? दिस ग्लूकोज इज इन माई ब्लड. सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीबडी ऑफ आवर बॉडी इज ब्लड ग्लूकोज. सो वॉलेट को आप इज इक्वल टू करो ब्लड ग्लूकोज. ठीक है? जस्ट इमेजिन एंड यू विल अंडरस्टैंड. यू जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और आपको ये समझ में आ जाएगा. व्हाट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी? एक बार ग्लूकोज में ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर हो गया, तो शरीर क्या करेगा? वो जो एनर्जी है वो आपके लीवर में स्टोर करेगा. सो द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी इज लीवर. सो बैंक अकाउंट को आप लीवर LIVER, लीवर, वॉट एवर इट इज द स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है. सो बट आई थिंक द स्पेलिंग इज करेक्ट. सो द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज लीवर. नाउ व्हाट इज द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी? सो ऐसा नहीं है कि बॉडी ऐसा, आपका शरीर, मेरा शरीर ऐसा कभी भी लाइटली नहीं लेगा हमारे खुद को कि भाई चलो ब्लड में एनर्जी है ना तो है, छोड़ दो, कभी भी मिलेगा ही नहीं. सो बॉडी डज इट्स प्रिपरेशन. जैसे हम लोग भी भाई कभी कोई बड़ा संकट अगर आ गया तो कुछ रिजर्व्स होने चाहिए. तो जैसे हमने सेविंग किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, यहाँ वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, वैसा शरीर भी करता है. सो द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन योर मसल्स. सो फिक्स डिपॉजिट को हम मसल्स की तरह क्रिएट करेंगे. ओके, एंड नाउ
comes the fourth source of energy, which is immovable property for your body as well as my body. And any guesses what is that? I am very sure you have guessed it right. Immovable property को आप फैट को कोरिलेट करो. फैट एज इन चर्बी. अगर आपका वजन बढ़ा है तो आपका वजन इसलिए बढ़ा है क्योंकि चर्बी बढ़ी है. चर्बी क्यों बढ़ी है? क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी मिला कि ब्लड में का जो एनर्जी है वो तो फुलफिल हो ही गया. उसके बाद में शरीर ने लीवर में भी स्टोर किया. उसके बाद में शरीर ने मसल्स में भी एनर्जी स्टोर करके रखी है. फिर भी इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि भाई शरीर ने उसे फैट या चर्बी की फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर करके रखा है. तो जस्ट अगेन इमेजिन आपके पास इतना पैसा है कि भाई आप आपके वॉलेट में नहीं रख सकते, तो आप क्या करोगे? तो आप बैंक में रखोगे, सेविंग अकाउंट्स में रखोगे. आपके सेविंग्स में भी इतना ज़्यादा पैसा है कि भाई वो बैंक वाला बोलेगा कि सर इतना ज़्यादा पैसा सेविंग में मत रखो, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम है. व्हाई डोंट यू डू अ फिक्स डिपॉजिट? तो भाई आपने फिक्स डिपॉजिट भी कर ली. तो आपने इतने ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट कर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि भाई अभी उस पैसे का करने का क्या? तो आपने भाई कुछ लैंड लेके रखी है, कुछ क्रिप्टो करेंसी में आपने शायद इन्वेस्ट करके रखा है, बहुत सारे फ्लैट्स लेके रखे हैं. दैट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो जब बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास तभी तो जाके आप फ्लैट लेने वाले हो. सो अगर आपके पास चर्बी है, सो जस्ट इमेजिन दैट आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है. नाउ जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन हाउ कैन आई, बट जस्ट इमेजिन दैट आई एम ब्लैकमेलिंग यू. ठीक है, तो मेरे पास ऐसे आपके कुछ राज छिपे हैं और मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ और मैं हर टाइम आपसे पैसे मांग रहा हूँ कि भाई पैसे दो, नहीं तो मैं वो जो आपका जो राज है ना मैं सबको बता दूंगा. वट एवर इट इज़, जस्ट इमेजिन. सो आपने भाई चलो वॉलेट में से दिए, इसमें से दिए, उसमें से दिए, और मैं अरे यार ये नीलेश हमेशा ही तकलीफ़ दे रहा है, हमेशा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है. और आपको भी अभी ये समझ में आ गया कि अभी नीलेश को ना पैसे की लत लगी है और अभी वो हर टाइम मेरे से पैसे मांगेगा. सो आप क्या सोचोगे? चलो भाई एक बार का केस रफा दफा कर देंगे, बाद में वापस झंझट नहीं चाहिए नीलेश का. सो आप नीलेश के साथ निगोशिएट करना चालू करोगे और नीलेश बोलेगा भाई कि चलो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, सो दैट आई विल नॉट डिस्टर्ब यू. मेरे पास जो भी आपके राज है मैं आपको ओरिजिनल कॉपीज में रिटर्न कर दूंगा एंड द डील इज डन. दैट इज़ द टाइम यू विल थिंक ऑफ ब्रेकिंग योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि शायद आपके पास उतने नहीं रहेंगे. सिमिलरली जब आप HIIT एक्सरसाइज करना चालू करोगे, दैट इज द टाइम योर बॉडी विल थिंक ऑफ ब्रेकिंग फैट. अब ये कैसे काम करता है? तो आपने ये कभी भी अगर सुना होगा और नहीं भी सुना होगा तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. हम सब लोग क्या करते हैं? तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज दैट वी स्टार्ट टू गो वॉकिंग. और हम वॉकिंग कितना देर करते हैं? तो ज़्यादा करके टाइम पे हम ये गिनते नहीं है, बट ऑन एन एवरेज वी वॉक फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स. At what pace you walk, at what speed you walk, इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप आपका ब्लड ग्लूकोज कितना इस्तेमाल करते हो. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप ट्रेडमिल पे 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे अगर आप 20 मिनट कंटिन्यूस चलोगे, तब जाके आपका ब्लड का जो ग्लूकोज है वो डिप्लीट होने वाला है. ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इन ऑल द जिम्स, आपने देखा होगा कि जिम के ऊपर लगाया ही रहता है, जिम के ऊपर नहीं, जिम में जो ट्रेडमिल रहता है उसके ऊपर ऐसे क्लियर कट लिखा रहता है कि डोंट यूज द मशीन मोर देन 15 मिनट्स. अरे भाई 15 मिनट्स तक मैं चलूँगा, मेरा ब्लड ग्लूकोज अभी तो किधर जाके ख़त्म होने आया है, बॉडी इज़ गोइंग टू लीवर, मैं एक्सरसाइज बंद कर देता हूँ. ठीक है, सो मेरा ब्लड ग्लूकोज जो खत्म होने आया था वो वापस थोड़ा सा रीगेन कर लेता है शरीर, बिकॉज ग्लूकोज अगर जब कम हो जाएगा तो लीवर से ग्लूकोज निकल के एनर्जी निकल के आपके ब्लड में वापस आ जाएगा एंड यू विल फील ओके. बट जस्ट इमेजिन कि आप चल ही रहे हो, ट्रेडमिल पे चल ही रहे हो, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भी हो गया, तब क्या होगा?
एनी इमेजिनेशंस, एनीथिंग? यस, आपको थोड़ा सा लो एनर्जी फील होगा, आपको चक्कर आएगा. दैट इज द टाइम योर बॉडी हैज ऑलरेडी यूटिलाइज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन योर लीवर ऑल्सो. तभी भी अगर आपने एक्सरसाइज चालू रखा, तब जाके कभी आपके मसल्स का एनर्जी इस्तेमाल होने वाला है, और फिर भी आपने एक्सरसाइज चालू रखा, तब जाके फैट को हाथ लगने वाला है. लेकिन ऐसी नौबत नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं आती है, क्योंकि जब आपका ब्लड ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, और जस्ट इमेजिन ब्लड ग्लूकोज खत्म होना यानी मतलब क्या, कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आपको भूख लगा है, दोपहर का टाइम हो गया है, इट इज़ ऑलमोस्ट वॉट एवर टाइम इट इज़, और आपको फिर भी खाना नहीं मिला है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज तो सुबह ही खत्म हो गया, अभी लीवर में का भी ग्लूकोज खत्म हो गया, और आपको अभी चक्कर आने लगा, वीकनेस, मराठीमध्ये खूप जण म्हणतात की हात थरथरायला लागतात, समजत नाही, देयर इज अ मेंटल फॉगीनेस, यू आर नॉट एबल टू कॉन्संट्रेट. सो इन नॉर्मल लाइफ ऐसे होगा नहीं. एक्सरसाइज मतलब आप एक्सरसाइज करते ही जा रहे हो और आपका ग्लूकोज का एनर्जी ख़त्म हो गया, आपका लीवर का एनर्जी ख़त्म हो गया, आपका ऐसा कभी होता नहीं. तो इसके ऊपर ऑप्शन क्या है? तो इसके ऊपर द बेस्ट ऑप्शन इज HIIT. Now in HIIT what happens is that because you do the exercise at a high intensity इंटरवल ट्रेनिंग. सो वो इंटरवल देना बहुत ज़रूरी है. जब आपके एक्सरसाइज का इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो आपका ब्लड शुगर का जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो स्पाइक अप हो जाता है, एंड देन वापस वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज इन द इंटरवल यू टेक अ ब्रेक फॉर 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स आइडियली. बट नॉर्मली ऐसे होता नहीं है. इफ़ यू आर अ बिगिनर इन HIIT, आपका जो ब्रेक होता है वो कम से कम 1 मिनट का हो जाता है, विच शुड आइडियली ब्रॉट डाउन टू मिनिमम 20 सेकेंड्स. सो यू एक्सरसाइज फॉर 30 seconds, you take a break for 20. You exercise for 20 seconds, you take a break of 10 seconds. Whatever pattern you follow, and you can do for 40 minutes, 40 seconds तक एक्सरसाइज करो, 10 seconds का ब्रेक लो. जितना इंटेंस आपका एक्सरसाइज होने वाला है, उतना इंटेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है. सो ये जो HIIT है ना, ये थोड़ा सा जैसे मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा था, वैसा HIIT आपके शरीर को थोड़ा सा ब्लैकमेल करने वाली चीज़ है कि भाई एनर्जी मांगता है, वापस नहीं मांगता है, एनर्जी मांगता है, कम करता 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 है. और ऐसा अगर आप मिनिमम the HIIT exercise has to be done minimum for 30 minutes. मतलब आपने जंपिंग जैक्स किया, ब्रेक लिया 10 सेकेंड्स का, देन यू डू अ पुशअप, वॉट एवर इज योर एक्सरसाइज. ये ऐसे एक आप कम से कम 8 एक्सरसाइज का एक सर्किट करना ज़रूरी है, और ऐसे सर्किट मिनिमम 3 बार रिपीट करना ज़रूरी है, सो दैट यू कवर अ टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, एंड 10 सेकेंड के आपके 5 या 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा. सो यू कवर 30 मिनट्स. सो वेन एवर यू डू अ HIIT ऑफ 30 मिनट्स, दैट इज द टाइम द बॉडी विल थिंक, अरे यार इसको एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए. सो व्हाट बॉडी विल स्टार्ट डूइंग इज दैट बॉडी विल स्टार्ट डिप्लीटिंग एनर्जी फास्ट करेगा ये फास्ट, क्योंकि देयर इज अ स्पर्ट ऑफ एनर्जी. मतलब जब आप पुशअप्स करते हो 40 सेकेंड के लिए, हाँ, तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है. तो जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो आपके बॉडी को ऐसे लगेगा कि भाई हार्ट के ऊपर इतना क्या लोड आ गया है. सो ही इज रेडी विथ ऑल दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, तो वो मसल्स का भी ग्लूकोज, मतलब ब्लड ग्लूकोज भी तैयार है. बट इफ़ यू डू इट HIIT फॉर से अराउंड 10 मिनट्स भी, आपको समझ जाएगा कि आप बहुत पसीने पसीने हो गए हो, आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. दैट इज़ द टाइम यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज ब्लड ग्लूकोज. देन लीवर भी जो सप्लाई करेगा, लेकिन द डिमांड इज सो मच दैट द बॉडी विल स्टार्ट पुशिंग एनर्जी फ्रॉम योर मसल्स ऑल्सो, एंड साइमल्टेनियसली फैट ऑल्सो, बिकॉज तभी जाके आपका शरीर चर्बी को हाथ लगाएगा. बिकॉज द एनर्जी का अभी बॉडी को यह समझ में नहीं आता कि भाई अभी मैं एनर्जी के साथ करूँ क्या. मतलब मैं अभी ये आदमी 30 सेकेंड्स के लिए कर रहा है, ब्रेक ले रहा है, 30 सेकेंड्स के लिए कर रहा है, ब्रेक ले रहा है, 30 सेकेंड्स के लिए ब्रेक ले रहा है, कर रहा है. सो द बॉडी विल
पंप अप ऑल इट्स रिजर्व्स, यू नो, सो सब कुछ तैयार रखेगा कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो ऑल दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो तैयार रखेगा. एंड इफ यू पास द मार्क ऑफ एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, बट ऑब्वियसली आपके फैट को भी हाथ लगने वाला है, आपका मसल लॉस भी होने वाला है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप HIIT कर रहे हो यानी आपका मसल लॉस नहीं होगा. मसल लॉस भी होने वाला है, लेकिन आपका फैट लॉस कब होगा? जब आप ठीक से प्रोटीन खा के आपके मसल्स को वापस इनफ प्रोटीन दोगे, सो जो भी मसल लॉस हुआ था वो वापस भर के निकलेगा. Okay, so because you are eating high protein or more protein and less carbohydrates, कम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो इसलिए बहुत ही कम ग्लूकोज बनेगा, जो शायद ब्लड ग्लूकोज से शायद लीवर में जाके स्टोर होगा, शायद मसल्स में जाके स्टोर होगा, लेकिन फैट में जाके स्टोर नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑन अ लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट. इसलिए आपका जो डाइट डिज़ाइन किया गया है उसमें आपको वाइट राइस तो दिया ही नहीं है, चपाती या भाकरी भी बोली है तो 1 या 1.5 ही बोली है. वी हैव आस्क्ड यू टू टेक 2 शेक्स बिकॉज प्रोटीन खाना ज़रूरी है. एक शेक में से इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं जाएगा. सो टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग मसल्स बट यू आर लूजिंग फैट, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोटीन. ऑप्टिमाइजेशन इज द करेक्ट वर्ड. ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या? आपका वजन कितना है, आपका फैट कितना है, आप कितने देर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका फैट लॉस का गोल क्या है, आपको कितना फैट कितने दिन में कम करना है. सो डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग योर प्रोटीन इज ऑप्टिमाइज्ड. सो आप में से कुछ लोग माइट बी टेकिंग 3+3 का 1 शेक, 3+3 के 2 शेक्स. आप में से कुछ लोगों को 2+2 का एक सपोर्टिंग शेक भी दिया है, सॉरी एक्सक्यूज मी, एग वाइट्स भी बोला है, शायद चीज़ क्यूब भी बोला रहेगा. यू नो देयर आर नंबर ऑफ. सो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके शरीर को मसल लॉस ना हो, मसल गेन हो. इसके लिए जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन दिया जाएगा. एंड बिकॉज द डाइट इज लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके फैट में जाके वापस डिपॉजिट नहीं होगा. बिकॉज द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर योर बॉडी इज सो मच, बॉडी यहाँ से भी एनर्जी यूज़ करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा और फैट में से भी करेगा. और आप ये ऐसा अगर बहुत दिनों तक करते रहोगे तो फॉर श्योर आपका फैट लॉस भी होने वाला है. सो अभी ये क्वेश्चन आएगा कि आपने ये दिन में 2 बार किया तो चलेगा क्या? चलेगा, बट दिन में 30 मिनट इज द रिक्वायरमेंट. सो इफ यू हैव दैट एनर्जी, if you have that time and if you have that stamina to do HIIT for minimum 30 minutes for 2 times a day, do it. You will get amazing fat loss result. और इसीलिए आपने आपके घर के आसपास के जो लोग देखे होंगे जो सालों से चल रहे हैं, दे आर जस्ट वॉकिंग, रोज सुबह जाके वॉक करके आएंगे, लेकिन उनके शरीर में कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा है. क्यों? क्योंकि वॉकिंग गए, गुड थिंग, ब्लड ग्लूकोज इस्तेमाल किया, शायद लीवर का भी एनर्जी थोड़ा सा इस्तेमाल किया, लेकिन घर पे आने के बाद खाएंगे क्या? पोहा, ब्रेड, उपमा, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स. तो वापस जो भी ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हुआ था वो वापस भर के निकला. इसलिए उनका बॉडी शेप, वेट, फैट परसेंटेज वैसे की वैसे ही है. बट इफ यू रियली वांट टू लूज फैट एंड इफ यू वांट टू लूज फैट फटाक से, स्टार्ट डूइंग HIIT and start optimizing your protein. So once you optimize your protein and once you start doing HIIT for a regular period of time, you will lose amazing fat. Okay, so now the questions is, what is an HIIT? So I'll give you the tip for that also and a very simple way of designing HIIT. So HIIT is high intensity interval ट्रेनिंग. सो आपको इंटरवल रखना ज़रूरी है. सो जस्ट इमेजिन आपको 10 सेकेंड्स का इंटरवल चाहिए. सो इफ योर interval is 10 seconds, your exercise time should be the double of it, so it should be 20 seconds. अगर आपको 15 सेकेंड्स का इंटरवल चाहिए तो आपका एक्सरसाइज टाइम शुड बी 30 सेकेंड्स. अगर आपको 20 सेकेंड्स का इंटरवल चाहिए तो द एक्सरसाइज टाइम शुड बी 40 सेकेंड्स. और आपको अगर आधे मिनट का इंटरवल चाहिए 30, तो द एक्सरसाइज टाइम शुड बी 60 मिनट्स. सो दिस इज नंबर 1. सो यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कि आपको कितने टाइम का इंटरवल चाहिए. अगर आप बोलोगे नीलेश मुझे 30 सेकेंड का इंटरवल चाहिए, तो मेक श्योर कि आप 60 सेकेंड तक यानी 1 मिनट तक
एक्सरसाइज कर रहे हो. एंड आई जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट एक्सरसाइजेस नीड्स टू बी डन इन एन HIIT ऑल्सो. द फर्स्ट एक्सरसाइज, द बेसिक, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक. यू कैन स्टार्ट विद जंपिंग जैक्स. So jumping jacks 20 seconds के लिए करो, 10 seconds का break लो. So this is the first. Second, you start doing it with a squat. So you will squat for 20 seconds, take a break for 10 seconds. Squats के बाद में you do a lunge. So lunge for 20 seconds, break for 10 seconds. तो आपने क्या किया, जंपिंग जैक्स में थोड़ा सा, मतलब आपको पहले वार्म अप करना ही करना है, बट जंपिंग जैक्स विल ऑल्सो गिव यू, इट इज़ नॉट, अगर आपको जंपिंग जैक्स भी बहुत हाई इम्पैक्ट चाहिए तो जंपिंग जैक्स के लो इम्पैक्ट वर्जन आप करो. देन स्क्वाट, देन आगे हम लंजेस. देन यू कैन, वंस यू हैव डन मोस्टली फॉर योर लेग्स, स्क्वाट्स विल बी फॉर, जंपिंग जैक्स विल बी फॉर एज सच होल बॉडी. स्क्वाट्स में भी पूरे बॉडी का जॉइंट्स मूवमेंट होता है. लंज में इज मेजरली for your lower body. Then you can decide whether you want to go to your core or you want to go to your upper body. So once you want to go to upper body, do push-ups. अगर आपको full push-ups नहीं आते हैं तो नी पुशअप कीजिए, नो वरीज. पुशअप्स होने के बाद में यू कैन डू सम साइक्लिंग क्रंचेस. सो डू अ क्रंचेस. सो जी आपका कोर इस्तेमाल होगा. फिर कोर के बाद में, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू सच काइंड ऑफ मिनिमम 8 exercises in one set. So we are at 5. So cycling होने के बाद में you can do a burpee. Okay, you can do a burpee. So we are at 6. Then you can do what else? You can do crunches में थोड़ा सा cycling crunches हो गया. और फिर then you can do plank hold for your core. So you have to hold plank for 20 seconds and 10 seconds or whatever interval you have suggested. So we are done at 3 and 3, 6 and 7, and we can add one more exercise which can be, you can do side plank also. So side plank on your right plus your left side of it. So this becomes one set. आपको ऐसे minimum 3 सेट करने हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. और अगर आपको इसका आदत हो जाएगा, इफ़ योर बॉडी गेट्स यूज टू ऑल दिस एक्सरसाइजेस, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन ऐड अ बिट ऑफ वेट टू इट. इसका मतलब क्या है, तो जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स, एवरीथिंग, यू मेक श्योर दैट यू टाई ankle weight to your legs, and every exercises can be done with the ankle weights. What is ankle weight? I'll show you. Hold on. Yep. So these are ankle weights. अभी ये जो है ये 1 kg के एंकल वेट्स है. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, इसको आपको आपके पैरों को घुंघरू की तरह बांधने हैं. लाइक यू इंसर्ट योर लेग एंड यू टाइट इट. सो जो भी एक्सरसाइज आप करोगे, आप उसमें एक यानी 2 किलो का बढ़ोतरी करके कर रहे हो, जिसके वजह से और भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट टिप. सेकेंड, आपको अगर इसका भी आदत हो गया तो एंकल वेट्स के साथ हाथ में स्क्वाट, हाथ में डंबल लेके जंपिंग जैक्स कीजिए, स्क्वाट लेके स्क्वाट्स, डंबल लेके स्क्वाट कीजिए, डंबल लेके लंजेस कीजिए. देन पुशअप्स में आप वेरिएशन कर सकते हो. फर्स्ट ट्राई टू डू अ फुल पुशअप, देन डू अ पुशअप and lift your hand in the up, so there can be number of variations to be done. So I hope I have covered. So always remember, your fat is an immovable property. आप easily आपका लैंड या आपकी इन्वेस्टमेंट का जो फ्लैट है, या इनफैक्ट आपका घर भी है, जो आप जितना इजीली नहीं बेचोगे, आपका शरीर भी उतना इजीली आपका फैट कम नहीं करने वाला है. उसके लिए ऐसा कुछ कंडीशन लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच योर बॉडी विल थिंक ऑफ touching the fat, or the best form of doing it is HIIT. So अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं भी करने हैं, so the simplest form of HIIT is go for a walk. 2 मिनट के लिए वॉक कीजिए.
1 मिनट के लिए जॉग कीजिए, 2 मिनट के लिए वॉक कीजिए, 1 मिनट के लिए जॉग कीजिए, वॉक जॉग इज एन HIIT. स्टार्ट साइकिलिंग बिकॉज एंड स्टार्ट द नॉर्मल रोड साइकिलिंग, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ान होती है, ढलान होती है, तो जिसकी वजह से आपके हार्ट बीट बढ़ेंगे, ट्रैफिक आएगा, आप रुकोगे, हार्ट बीट लोअर हो जाएगा, वापस स्पीड बढ़ाने का हार्ट बीट बढ़ेगा. सो दिस आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ HIIT. और HIIT इज टू बी डन एनीथिंग फॉर 30 मिनट्स एज आई टोल्ड यू. जब भी आप HIIT करोगे बट ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट बीट है वो आपके मैक्स HR जोन में पहुंचने ही वाला है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द टाइम. मतलब 20 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स. और ये इसके लिए बहुत सारे टाइमर्स ऐप भी आते हैं. सो यू कैन सर्च फॉर HIIT टाइमर ऐप, और उसमें आप ये टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो एंड इट विल गिव यू अलार्म कि हाँ 10 सेकेंड हो गए. इट कैन ऑल्सो गिव यू अ काउंटडाउन के लास्ट 5 4 3. सो यू गेट रेडी एंड देन you start doing it and everything. So everything is available. Make sure you watch this, and if any more information needed, any technical doubts needs to be answered, please reply on this video and I will be more than happy to help you. I hope this video has helped you a bit. So make sure that you like it, you comment on it, and you share this video with your near and dear ones and whoever needs this information. So see you some other day with some other topic, with some other video. Bye bye. Take care.